electrode level localization, which are used in our hybrid vehicles. These are being manufactured at the Toshiba, Denso, Suzuki Gigafactory here. It's only raw material and some semiconductor parts coming from Japan. This is a big salute to Atmania Bahar Bharat. We will use a multi-powertrain strategy, including electric, strong hybrid, ethanol flex fuel, and compressed biogas to achieve carbon neutrality and climate change goals. Suzuki will invest over 70,000 crore rupees in India. Over the next 5 to 6 years, Honorable Prime Minister, Suzuki has proudly partnered in India's mobility journey for over 4 decades. We remain committed to supporting India's vision for sustainable green mobility and contribute to Viksit Bharat. I invoke the blessing of Lord Ganesha for your excellencies and the people of Gujarat and India for good health and prosperity. Dhanyawad. Thank you, Mr. Suzuki, for your warm welcome words and also for choosing India as the global hub for Suzuki's electric future. Now, it is my privilege to invite His Excellency Mr. Keiichi Ono, Ambassador of Japan to India, to kindly share his thoughts with us. Welcome, sir. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister, Shri Bhupendra Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, Mr. Toshihiro Suzuki, Representative Director and President, Suzuki Motor Gujarat, Mr. Hisashi Takeuchi, Managing Director and CEO, Maruti Suzuki India, Mr. Kuragawa, Chairman, Maruti Suzuki India. Respected dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaste Mitro, Kemcho. Good morning, Ohayo gozaimasu. Marunam Ono Keiichi, Anehum Baratoma, Japan no Rajdutucho. Mania Wada Pradhan, Shri Narendra Modi ji ni उपस्थिति में सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा देना सर्व प्रदान बैटरी इलेक्ट्रो व्हीकल इवितारा ना एक्सपोर्ट ना जुबाराम प्रसंगे माने हजार रहेवानो अनेरो आनंद चे जापान तेमा यूरो साहित्य विश्वना एक सोती वादु देशों में एक्सपोर्ट करनार इवितारानो संपूर्ण उत्पादन गुजरात मातीजा दारुशे ते आत्मनिर्भर भारत तेमाची मेक इन इंडिया की अनोखी प्रतीति करावे छे 20 ऑगस्ट 2025 ના રોજી સુઝુકી મોટર કોર્પોરેશનના હેડક્વાર્ટર્સ જાપાનના હમામાત શહેર સાથે ગુજરાતના અહેમદાબાદ શહેરનો સિસ્ટર સિટી ટ્વિનિંગ થનો છે તે પણ એક અત્યંત આનંદની વાત છે.
Ajuna Prasange, who Suzuki Motor Corporation, Maruti Suzuki Temaje Suzuki Motor Gujarat ने हार्दिक अभिनंदन पाठो छो અને માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી તેઓ ટૂંક સમયમાં જ જાપાનના પ્રવાસે જનાર છે તેને સફળ પ્રવાસ માટે મારી અંતરની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. Now let me speak in English. It is a great privilege to be here today to celebrate two remarkable milestones. First, the commencement of production of domestically manufactured lithium-ion battery cells at the electrode level, localized for strong hybrid EVs. And the second, the launch of production of the eVitara, making the Maruti Suzuki's continuing journey towards a sustainable and clean mobility. Japan and India have enjoyed a long-standing relationship built on mutual respect, shared values, and a common vision for peace, prosperity, and progress. By investing in India more than 40 decades, Suzuki showed confidence in India's potential and helped create one of the most successful collaborations between our two countries. Today, Maruti Suzuki stands as a model of how Japanese precision and Indian ingenuity can come together to achieve global excellence. Beyond automobiles, the establishment of localized battery cell production by Suzuki, Toshiba, and Denso demonstrates how our cooperation continues to adapt to new challenges and technologies. This project represents a major step forward in advancing India's clean energy transition and self-reliance. On this historic day, I once again congratulate Suzuki Motor Corporation, Maruti Suzuki, and TDSG for their vision and dedication. I'm confident that today's achievements will inspire further innovations and deepen the bonds between our two nations. Last but not least, I would like to reiterate that the government and the people of Japan are looking forward to Honorable Prime Minister Modi's visit to Japan on this Friday, which will pave the way to our even closer partnership in the coming decade. Abar, Dhanyawad. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency, for your warm words of partnership. India and Japan truly stand together in innovation and trust. Khub khub dhanyavad. Now, it is my honor to invite the leader of Gujarat, who has carried forward the legacy of progress and industry in this state, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji. मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से सभी को संबोधित करें. मारुति सुजुकी द्वारा गुजरात में हासुलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, जापान के भारत स्थित राजदूत श्री यूत कैची ओनो, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट श्री टी सुजुकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ श्री एच ताकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री आर सी भार्गव तथा उपस्थित सभी आमंत्रित सम्मानीय अतिथिगण और प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार. आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जो गुजरात की इंडस्ट्रियल जर्नी में
एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। गुजरात की धरती ने हमेशा से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास और प्रगति का मार्ग अपनाया है। आज प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हासलपुर में सुजुकी मोटर्स द्वारा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग और 100 से अधिक देशों में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सपोर्ट की घोषणा, यह विकसित भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उद्योग को केवल रोजगार का या आर्थिक निवेश का साधन ही नहीं माना, बल्कि उसे संपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना है। उनकी यही सोच आज मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में पूरे विश्व के सामने है। यह आज हासलपुर में सुजुकी मोटर का यह मॉडर्न प्लांट 21,000 करोड़ से अधिक से निवेश के साथ एक ऐसा युग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें गुजरात पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में गुजरात ने पिछले 2 दशक में यह सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोएक्टिव गवर्नेंस साथ मिलकर कैसा एक राज्य को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बना सकता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने विजनरी लीडरशिप और अद्वितीय सोच के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत की थी। यही एक ऐसा मंच साबित हुआ जिसने गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर स्थापित कर दिया। उनके इस एक विचार ने इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज के लिए नए द्वार खोलने के साथ विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई ऊर्जा और दिशा दी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंसिस गुजरात के हर जिले के लिए उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नई इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी देंगे और विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने में यह कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साणंद और मांडल बेतराजी जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इस विकसित भारत के विजन का लाइव एग्जाम्पल है। इतना ही नहीं, मांडल, हासलपुर, बेतराजी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम भी तैयार हुआ है। गुजरात के ऑटो सेक्टर के ग्रोथ की बात करूं तो 2008 से 2012 में बढ़कर यह ग्रोथ डबल से भी अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, विश्व के 102 देशों में मोटर व्हीकल का एक्सपोर्ट भी हुआ है। यह आंकड़े गुजरात की उद्यमशीलता का सफल प्रमाण है। साणंद और मांडल में बेचराजी SIR जैसे ऑटो क्लस्टर फ्यूचर के इनोवेशन सेंटर भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये क्लस्टर गुजरात को विश्व का ऑटोमोटिव हब बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आज का यह अवसर और भी विशेष इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सुजुकी के इस प्लांट से बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन की शुरुआत नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रीन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संकल्प है। गुजरात और जापान का संबंध विश्वास, व्यापार और संस्कार का है। सुजुकी, तोशिबा, डोशो जैसी कंपनियां का निवेश के लिए गुजरात को चुनना इस विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि उद्योग उत्पादन के केंद्रों के साथ आदर्श समाज को दिशा देने वाला इंजन भी है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में गुजरात ने सीखा है कि विकास और विश्वास साथ मिलकर ही समृद्धि का रास्ता बनाता है। आज हासलपुर का यह
आयोजन इस विकास और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। मैं यहां उपस्थित सभी इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रीज फ्रेंड और विशेष रूप से सुजुकी मोटर्स के सभी लीडर्स का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार गुजरात पर विश्वास जताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले वर्षों में गुजरात का ऑटोमोटिव सेक्टर पूरी दुनिया को नई दिशा देगा। आइए हम सब साथ मिलकर भारत की इस अविरत विकास यात्रा के सहभागी बने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो 2047 में तक विकास भी बने और विश्व का मार्गदर्शन भी बने। इस विश्वास के साथ मैं यहां उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए और आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। Ladies and gentlemen, there are moments in history that define the future, which are born out of vision, innovation, and collaboration. Today is one such moment where India's spirit of Make in India meets Japan's legacy of trust, and together they pave the road towards a sustainable tomorrow. This is more than a milestone. It is a movement, a journey of progress, of partnership, and of pride. We shall now take you through this story of transformation through a short film. भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। Prime Minister Narendra Modi's vision of Make in India for the world is driving a new era of economic prosperity. Inspired by this vision, Suzuki Motor Corporation has chosen India as its global manufacturing hub for the new battery electric vehicle. Suzuki Japan made Gujarat its Karm Bhumi in 2012 during the tenure of Shri Modi as the Chief Minister. Today, the same plant is set to manufacture the all-new e-Vitara. Unveiled at the Bharat Mobility Global Expo by the Honorable Prime Minister and built on a dedicated EV platform, with exports planned to over 100 countries, reinforcing India's forex reserves and reducing its reliance on oil imports. Another key milestone was created in 2017, when the Prime Ministers of India and Japan together laid the foundation for a lithium-ion cell and battery manufacturing facility. This collaboration of Toshiba, Denso and Suzuki, TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited, has now begun localized production of advanced electrodes for hybrid car batteries. With high level of localization, this milestone stands as a shining example of Atmanirbharta and a decisive step in India's decarbonization journey. To realize Honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat at 2047, Suzuki Group is committed to achieve deep localization and make in India for the world. Once again, we congratulate India and Japan. Ladies and gentlemen, today we have with us the leader whose vision of Make in India for the world has transformed our nation's future. A statesman who carries India's voice across the globe, the pride of 140 crore Indians and the architect of Viksit Bharat. आज हमारे बीच उपस्थित हैं वह नेतृत्व जिसकी दूरदृष्टि ने भारत को आत्मनिर्भरता और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आइए तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करें कि आप उपस्थित सभी को संबोधित कर मार्गदर्शन दें।
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल भारत में जापान के राजदूत श्रीमान केइची ओनो-सान, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी-सान, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी हिताशी ताकेउची-सान, चेयरमैन आरसी भार्गव, हंसलपुर प्लांट के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक प्रकार से टीन एज का आरंभ होता है और टीन एज पंख फैलाने का कालखंड होता है, सपनों की उड़ान भरने का कालखंड होता है और टीन एज में ढेर सारे ख्वाब उभरते हैं। एक प्रकार से पैर जमीन पे नहीं होते हैं टीन एज में। मुझे खुशी है कि आज मारुति टीन एज में एंटर कर रहा है। गुजरात का मारुति का टीन एज में प्रवेश यानी आने वाले दिनों में मारुति एक नए पंख फैलाएगा, नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, तब हमने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज
देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओसामू सुजुकी-सान को हृदय से याद करना चाहूंगा। हमारी सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था, वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा। इससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में और तेज गति आएगी। मैं आपको इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए अपनी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले उस समय तक
ईवी को केवल एक नए ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मेरा मानना रहा है ईवी कई समस्याओं का ठोस समाधान है। इसलिए पिछले साल मैंने अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान कहा था, हम अपनी पुरानी गाड़ियों को, पुरानी एम्बुलेंसेस को हाइब्रिड ईवी में बदल सकते हैं। मारुति सुजुकी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और केवल 6 महीने में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। अभी मैंने वो हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा भी है। ये हाइब्रिड एम्बुलेंस पीएम ई ड्राइव स्कीम में पूरी तरह फिट बैठती है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की इस योजना में ई एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड ईवी से पॉल्यूशन भी घटेगा और पुराने व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है।